थिंक बेन बीसीजी मैकेंजी सबका अराउंड 32 33 होता था कैश इन हैंड टाइप, टैक्स काटने के बाद जो ही बचेगा तो आई थिंक महीने का 2.5 लाख टाइप आ जाता था बैंक में. तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग डाउन साइड ऑफ डूइंग कंसल्टिंग फॉर लॉन्ग इन माई हेड. एंड थर्ड लेवल जो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन जो बहुत लोग मिस करते हैं इज़ द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. गलती से अगर आपका वो चले गया, खुद पे से भरोसा, तो आप बहुत घुट घुट के करियर बनाते हो, फिर डर डर के करियर बनाते हो. वो कॉस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट वो आपको करनी चाहिए कैलकुलेट इन सम वे और द अदर. एम आई समबडी हु कैन भूलो और आगे बढ़ो, और एम आई समबडी हु विल नीड टाइम टू नाउ रिकवर. Hi Arshi, welcome. Hi Vishwas. Welcome to the Paranam podcast today. Glad to have you here. Thank you for having me. Management consulting is something which has picked up a lot in India in terms of aspiration. So why did you choose to go to Bain in the first place? And what was your entire experience in those 18 months? Now why I joined Bain? तो जब मैं IIM गया था, I went in with the mindset कि I wanted to be in a field जहाँ पे I am around real world things, like हाथ से उठा सकूँ मेरे काम को, वैसा काम करना था मुझे. And then I went to company presentations. I think McKinsey and BCG were still in that zone. They were still only looking at like very refined high performers who've never made a mistake in life. Bain, when they presented, they came in with a mindset of, at least I got that feeling कि you can make mistakes, you know, we'll teach you, we'll handhold you. And it felt like more of a mentorship model that they were encouraging instead of a we'll throw you in front of the client from the very first day. So Bain shortlisted me, they liked me, I liked them. Like my question when they had come to present to the presenter was कि you look like you work out, do you get time to work out? He told me something at Bain, it was called a virtual baby. कि हर इंसान को अपना एक प्रायोरिटी सेट करने को मिलती है लाइफ में. दैट्स योर वर्चुअल बेबी, कि ये मेरा बच्चा, ये मर नहीं सकता. एंड ही टोल्ड मी कि उनका वर्चुअल बेबी जिम जाना था. सो हिज टीम वुड पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स टू एंश्योर कि ये हफ्ते में 3 बार जिम जा पाए. आई लाइक दैट आइडिया. वन थिंग आई अंडरस्टूड वॉज बेन वॉज यंग इन इंडिया, सो दे हैड अ लीडरशिप वैक्यूम. दे वर लुकिंग एट पीपल टू ग्रूम दैम एंड टेक दैम अप in the hierarchy, unlike McKinsey or BCG who would want people to step up or step out. Right? So that difference was there. So yeah, that's how Bain happened. Internship थी. At my internship, my manager told me कि listen, we'll hire you if I like you enough to want to invite you for my birthday. काम rocket science नहीं है, हम सिखा सकते हैं किसी को भी. अगर तुम इंसान हमें अच्छे लग गए, हम तुम्हें रख लेंगे. I like that mindset as well कि ठीक है. I mean, vibes बहुत अच्छी थी. So yeah, Bain happened and it was a great decision. I really enjoyed my time at Bain. So when did you join Bain exactly? Which was that year? 2017. June. Right, so you joined in 2017. Could you tell me what was your CTC when you joined there? Like what was it's very transparent. I think Bain, BCG, McKinsey सबका around 32 33 होता था. Right. All like cash in hand type, टैक्स काटने के बाद जो ही बचेगा तो आई थिंक महीने का 2.5 लाख टाइप आ जाता था बैंक में. What was the journey like in terms of your appraisals and everything? So like you were there for 18 months? हाँ, so 1 साल के बाद जब प्रमोशन हुआ था, came to I think 38, वही 15-20% जो भी हाइक होता है वो था. So by the end of 18 months, I think you were at around 38 or 40 CCC, somewhere around this. What was your entire experience in those 18 months? Like, what was it like? What is that the people feel that they know, but they actually don't? Okay. Right? And what are the hardcore realities that you should be knowing, and what is maybe the myths around it that surround around management consulting? Things you should be aware about when doing management consulting. One is, and this is what my senior told me, and that's why I quit consulting, by the way. And he told me that ठीक है, बुरी चीज़ें होती हैं कि बहुत काम होगा, बहुत मेहनत होगी, ये सब सबको पता होता है. जो चीज़ नहीं पता होगी वे होगी कि in a few years you will be too expensive for the market if you want to ever leave. तुम्हारी सैलरी इतनी एक्सप्लोर कर चुकी होगी कि कोई और तुम्हें उस सैलरी पे तो हायर नहीं कर पाएगा. तो यू हैव टू टेक अ वेरी बिग हेयर कट इफ़ यू एवर वांट टू डू एनीथिंग एल्स. तो अगर कंसल्टिंग शुरू करी है, मज़ा आ रहा है, पर ज़िंदगी में कुछ भी और करना है तो कर लो, फिर लौट आओ. भले ही 5-6 साल बाद नहीं छोड़ पाओगे, इनर्शिया बहुत हो जाएगा. सेकेंड, योर लाइफ स्टाइल विल रेडिकली इम्प्रूव. वैन यू जॉइन, यू आर लिविंग एज पर द लाइफ स्टाइल ऑफ योर मैनेजर. So even though you hear that consulting has long hours, it's highly customized as per the team, the client and the person, the CTL or the manager. So the manager told me कि यार अभी तुम मेरे minions हो, जब तुम बनोगे तो तुम्हारी लाइफस्टाइल पे तुम्हारी टीम काम कर रही होगी, तो वो और स्टेप अप हो जाएगा, तो और छोड़ना मुश्किल होगा. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, एज अ कंसल्टेंट you get very comfortable with the idea of creating solutions. We don't really help innovate, we help optimize processes.
तो यू कैन बी ग्रेट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच आर डिफाइंड. 35-40 की उम्र में आके कोई तुमको बोले अब खुद से प्रॉब्लम ढूंढो, वो बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड दैट इज़ द फाउंडर मेंटालिटी दैट यू कैन डू व्हेन यू आर स्टिल यंग, बिकॉज यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन योर ओन लाइफ. खुद भी देख रहे होते हो चीज़ें जो सॉल्व करनी होती हैं. 45-40 के हो गए, पैसा भी कमा रखा है, नौकरी भी अच्छी है, घर वर भी सेट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे शायद, जो बहुत सारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर जाए. तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग डाउन साइड ऑफ डूइंग कंसल्टिंग फॉर लॉन्ग इन माई हेड. दैट्स व्हाई आई क्विट. Of an average management consultant, I haven't heard कि कितने लोग startup के लिए they quit their jobs. I'm guessing the number would be pretty low, especially compared to versus people who are in IITs and IIMs just करके निकलते हैं and then they pursue their startup dreams and all of that. Obviously you had your thing कि यार ठीक है मुझे छोड़ना है for this particular reason, but you also need a purpose कि यार मैं अब जैसे मैंने छोड़ दिया तो मैं करूँगा क्या, right? So what was that transition like कि सोच भी लिया कि भाई छोड़ना है, अब मैं छोड़ने के बाद करूँगा क्या? Ideally there is a transition. Right. Mine was, and I have lived my life that way, sadly or happily, कि मन क्या कर लिया. So I had a friend who was working with an investment firm. They had invested in a couple of young startups. उसने मुझे एक बार डिनर पे बुलाया था. I was in Bain at that time. Okay. Then he told me about a new startup that they were investing in, which was around content creation. Okay. And they needed a chief creative officer. एंड मेरी IIT की 3rd ईयर की इंटर्न लियो बर्नेट में थी. मेरी एक इसराइल के ड्रोन स्टार्टअप में इंटर्न लगी थी, बट आई ड्रॉप दैट टू गो वर्क विद लियो बर्नेट फॉर 2000 रुपीज़ अ मंथ. ही न्यू कि ये इंसान को अगर अच्छा रोल मिलेगा तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पकड़ लेगा. एंड आई अग्रीड कि ठीक है करते हैं. जब हम घुसे थे, एक मेरा बेंचमार्क था कि यार मैं जितना बेन में कमा रहा हूँ उसका 50% भी कमा लूँगा तो मैं खुश रह लूँगा. उतना सैलरी हम ड्रॉ कर पा रहे थे बिकॉज इन्वेस्टमेंट थी. एंड देन प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए. वी बिकेम हाईली प्रॉफिटेबल. तो 1.5 साल में मैं उसी लेवल पे आ गया जितने में बेन पे हो जाता. Right. So, but what happened then? Like, why did you leave? I at that time knew that I am still not cut out for the CEO mindset. I was solving Manan's problems. And then I also knew कि यार this business is not a 10x 20x scale business. Startup नहीं है, धंधा है. आप एजेंसी हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो. हाँ. Right. And then the second startup, my batchmate from IIM Calcutta, he reached out to me. At that time, my Instagram was flourishing. I had like 500,000 followers there. I used to do comics, do poetry, everything. And it was purely hobby, never monetize. I still don't monetize it. तो ही रीच आउट टू मी सेइंग कि यार तेरे पास ऑडियंस है, हमें कुछ कंज्यूमर रिसर्च करनी है, कुछ लोगों से बातें करनी है, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अराउंड डेटिंग. एंड देन आई सॉ द फर्स्ट प्रोटोटाइप दे हैड मेड ऑन देयर फिग्मा. एंड मेरी तो ऐसे आँखें खुल गई कि ये तो बहुत सुंदर चीज़ बनी है, मेरे फ़ोन पे अच्छा दिख रहा है, ये इसको बेचने में मज़ा आएगा. तो आई जम्प शिप फ्रॉम लाइक इट वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम क्यूरियस टू मिंग आउट. ऑलमोस्ट 6 months का ट्रांजिशन था. और वहाँ सैलरी कट इमेंस था. सैलरी दूर की बात है, हम तो पैसा डालने वाले थे और खर्चा करने वाले थे धंधे पे. तो मैं नेगेटिव में जाने वाला था कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से ऑन अ मंथली बेसिस. बट आई डिडंट ओवर थिंक इट. मेरे को लगा ठीक है, इनफ सेविंग्स हैं, घुस जाते हैं, क्या ही होगा. What was the last paycheck that you were drawing from Curious? The last salary? Per month 3.5. 3.5 to now you have gone to a complete zero, right? Complete zero. Complete zero at Mingout. But let's suppose if जैसे you said कि यार ठीक है मैं कमा नहीं रहा था, वो problems मुझे वापस आनी शुरू हुई, but I managed it. So what were these problems? Like वो कैसे आई? How did you encounter them in what shapes and forms? And how did you solve them? The biggest I think change was self-worth. पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी. उसका एक नंबर था, महीने का 3 लाख की सेल्फ वर्थ है मेरी. जब वो चले जाते हैं, जब सैलरी आनी चली जाती है ना, सबसे बड़ा झटका वो लगता है. आई सॉल्व्ड इट बाय टैपिंग इनटू माय एम्पैथेटिक एंड इमोशनल साइड. पहले ना प्रॉब्लम पे पैसा फेंकना आसान था. द वेरी फर्स्ट थिंग आई लर्न वाज व्हाट कैन यू गिव टू पीपल बियॉन्ड मनी. तुम इंसान को कुछ नहीं दे सकते खुद की टाइम के अलावा, क्योंकि वही है तुम्हारे पास बस. सेकेंड वॉज न्यूट्रिशन. माई वेरी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन हेल्दी रहना है. जब मैं बेन में था तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन था कि टेस्टीएस्ट क्या होगा. Right. यहाँ पे हो गया चीपेस्ट क्या होगा. Right. ऐसे करते करते मेरा मील मन में होता था कैलकुलेशन कि हर मील की कॉस्ट कितनी पड़ रही है. तो ये हो गया न्यूट्रिशन को लेके. बड़े चेंजेस जो आते हैं वो ये होता है कि आपके फ्लाइट्स, आपके वेकेशंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी होप्स एंड एम्बिशंस ऑफ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, सब बदल जाते हैं. आपके टाइमलाइंस शिफ्ट हो जाते हैं. शादी करनी थी, अब 2 साल बाद करेंगे. बट पीपल हु नीड टू डू दैट, एक विंडो बना लेनी चाहिए कि यार मैं ज़िंदगी में ये 2 साल जो मेरा कैश फ्लो कम होने वाला है, वो 2 साल में मेरे ऐसा आदमी अगर 30-40 लाख की सेविंग कर लेता तो 20 साल की कंपाउंडिंग में उसको 5% की भी कंपाउंडिंग करी तो वो कितने का हो जाएगा, 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा. एटलीस्ट रिटायरमेंट सॉर्ट हो गई.
सेकंड, आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, आप 2 साल का जो एक हेयर कट ले रहे हो फ्रॉम सैलरी, यू ऑल्सो टेकिंग अ हेयर कट फ्रॉम एक्सपीरियंस. मैंने स्टार्टअप बनाया, नहीं चला, नाउ आई गो इन द मार्केट. वो 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए. वर्सेस 2 साल नौकरी में होता, 4 प्रोजेक्ट्स कर लिए होते, 2 क्लाइंट रिकमेंडेशंस होते, 2 प्रमोशंस होते ऑन माई CV, राइट. अगले 3 से 5 साल मुझे रिकवरी में लगेंगे टू गेट बैक टू दैट सेम CV. मेहनत भी करनी पड़ेगी और उतना कमा भी नहीं पाऊंगा जितना इस रास्ते पे कमाते रहता. एंड थर्ड लेवल, जो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन जो बहुत लोग मिस करते हैं, इज़ द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. गलती से अगर आपका वो चले गया, खुद पे से भरोसा, तो आप बहुत घुट घुट के करियर बनाते हो, फिर डर डर के करियर बनाते हो. वो कॉस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट वो आपको करनी चाहिए कैलकुलेट इन सम वे और दी अदर, कि यार वो लॉस कितना बड़ा है मेरे लिए. एम आई समबडी हु कैन भूलो और आगे बढ़ो, और एम आई समबडी हु विल नीड टाइम टू नाउ रिकवर. टेकिंग दैट लास्ट पॉइंट वेयर यू सेड कि खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यार वापस कुछ कर लेंगे, वापस you can go into that phase where you'll again start building up things and you'll recover. So first tell us like what you're doing right now, and how are things right now for you? If you're talking about rebuilding, right, there was 3 stakeholders in my life that I needed to rebuild for. One, and very immediate, like you know how in any business you solve your debts first, you solve your liabilities first, were people who I owed something to. दिमाग में वो है कि यार वापस चुकाना है, लोगों का भरोसा, लोगों का पैसा, राइट. सेकेंड सेट ऑफ होते हैं जो आपके इमीडिएट सर्कल के लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, जो आप पे आज नहीं तो कल डिपेंडेंट होने वाले हैं. इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर कि भाई नहीं घबराना है, नहीं टूटना है, यू नो, यू हैव पीपल यू नीड टू टेक केयर ऑफ. That helps in your rebuilding phase. And third is for yourself. You owe things to yourself. I think ideally you're the first person who you owe anything to. Third step was objective things. Rebuilding some cash flow. Because अभी आप उस जगह से आ रहे हो, अब आपके पास पैसा तो वैसे भी नहीं है और आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं. I would suggest to people कि if you're rebuilding, do not look at only the best possible options. At least find something on the side that helps you sort of get back that financial confidence. Right. And I did that. I did a couple of projects. I did some small jobs. I did some work just to make sure कि यार एक वापस stable cash flow आने लगे, एक वो setup हो जाए. And then thankfully because of my parents and sort of everything, I was able to recover in all fronts, emotionally, physically, mentally, commercially. अब हो रहा है धीरे धीरे. What I'm doing now is I am working with the government of Madhya Pradesh in the Urban Development Ministry, sort of consulting them in a sense, helping them build an organization structure which can coordinate between the different schemes, citizens, the minister sir, and the bureaucracy. I'm really enjoying it. I'd keep telling young people also who are, let's say, worried about their jobs when they're 20-24, कि your first job, your first career switch or whatever is maybe 3, 4, 5 years into your adult life, right? कॉलेज से निकले 21-22 की उम्र में, नौकरी मिली 23-24 की उम्र में, फायर हुए, प्रमोट हुए, जो भी हुए, 25-26 जो 4-5 साल हैं, दैट इज 10% ऑफ योर करियर. 90% जिंदगी बची है. एंड आई टोल्ड दिस टू माई सेल्फ. 30 की एज में फेलियर देखा है, 30 साल और बचे हैं, और जो सक्सेस में तुम बहुत खुश थे वो तुम्हें 4 साल में मिल गई थी. इफ आई डू नथिंग, इफ आई जस्ट गो बैक टू डूइंग एन MBA फ्रॉम अ कॉलेज आउटसाइड ऑफ इंडिया, आई कैन स्टिल गो बैक टू वेयर आई वाज 7 years ago, एंड दैट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी. दैट थॉट रियली हेल्प मी. वो पर्सपेक्टिव कि यार 30 साल बचे हैं जिंदगी में मेहनत करने के. Thank you, Arshi. Thank you so much for joining us today here at Paranam. And I actually think a lot of people will derive a lot of learnings because they'll be able to relate to you in many aspects, be it career, be it money, be it their finances, be it their life choices that they make. Especially, I think young people will be able to gather courage from this, right? So thank you so much for joining us today. It was an absolute pleasure.